Good morning, students. Today we'll also learn how to find quadratic equation by given roots. Now you everyone is aware of what is a quadratic equation. A quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. This is a quadratic equation that is given to us. But how to find when the roots are given to us? So you very well know what are the roots that I am talking about. Let's say the sum of the roots. The sum of the roots is minus b upon a. Okay, and the product of root is c upon a. This is the sum of roots and this is the product of roots. Now if I just divide the whole equation, if I see this equation and divide this equation by a, so what I'll be getting is x square plus b upon ax plus c upon a equals to 0, because इसको भी a से करूँगा पर ये तो 0 ही हो जाएगा. Now I'm just playing around with this one. Okay, now one thing that I need to understand, x square minus b upon a x, I can write it like this because when I open the bracket it's again going to come this, and when I put a with everything, then again it's going to come something like this when I find the LCM of everything. So plus c upon a equals to 0. Now you have now understood कि माइनस बी अपॉन ए किसकी वैल्यू है. ठीक है, दैट इज सम ऑफ द रूट्स. सो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, ऐसे बनती है. अब मैं आपको इसका हल्का सा एग्जांपल देता हूँ अपने आप से. लेट्स से मुझको सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है. ठीक है, तो मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा. मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है 5/3. ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट इज 5/3 एंड sum of the roots is 5/3 and the product is let's say 7/3. Okay, so what I'll be writing, how to put when these two things are given, I'll be writing x square minus sum of products, that is sum of roots. Sum of root is 5/3 x and plus product यहाँ पर आ जाएगा, that is 7/3 equals to 0. अब होगा क्या, अब आपको एलसीएम ढूंढना है. इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे भी 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू, नीचे 3 होता है कॉमन, पर 3 ऊपर 0 के साथ जाएगा, 0 बन जाएगा. सो दिस became a quadratic equation. So how to form a quadratic equation when the sum and the product of the roots are given? So this is the formula. This is the formula that you're going to use. Okay, that x square minus sum of roots into x plus product of roots. Okay, this also you can find on page number 372. If you guys want to go through page number 372, you'll please go on page number 372 and you will be able to understand this also. So that's how it works. Okay, how to form a quadratic equation when these two things are given. Okay, we'll also learn to find conditions when the roots are connected. When the roots are connected, what do I mean when the roots are connected? Let's say I have two equations, that is a x ax square a1x square plus b1x plus c equals to 0, c1, and the second equation is a2x square plus b2x plus c2 equals to 0. So you can see I have two different equation and the x variable is same. x अगर यहाँ पर है x is same. Okay, x is not different, but for both of them if I have a common root, let's say and the common root is alpha, तो जब मैं इसमें अल्फा की वैल्यू डालूंगा x की जगह तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए. तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, c a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c2
sorry, equals to 0. Okay, now I'll find the value of, see, I'll find the value of, you know how to find, know how to do क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो आई व्हाट वी आर लर्निंग कि जब एक कॉमन रूट है, जब एक कॉमन रूट है दो इक्वेशन में, तब हमें क्या करेंगे, दो इक्वेशन दे दी मुझे और उसमें एक कॉमन रूट है, जैसे 5 दे दिया, अभी तो हमने अल्फा लिया है, जैसे 5 दे दिया, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. सो वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ फॉर्मूला ओवर हियर. ओके, व्हेन यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 अल्फा ओवर c1a2 माइनस c2a1, okay, equals to 1 over a1b2 minus a2b1. So this is how the equation is going to come. So basically what I am trying to tell you guys that मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है, देखो एक तो अल्फ़ा आएगी, दोनों अल्फ़ा की वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू इक्वल होंगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस ओवर हियर इज दिस, दैट b1 c2 माइनस b1 c1 b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये इस्तेमाल करना है. अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये हम क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं फिर से समझा देता हूँ आपको. लेट्स से हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दो डिफरेंट इक्वेशन दे रखी है और हमें कॉमन रूट दे रखा है कि उसका कॉमन रूट है 5. आप दूसरा रूट ढूंढिए या फिर आप वो रूट है क्या वो ढूंढिए या फिर कुछ भी बता सकते हैं. तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं ये वाली इक्वेशन डालूंगा था, ठीक है, व्हेन आई हैव अ कॉमन रूट. कब ये वाली इक्वेशन कब डालूंगा, व्हेन आई हैव अ कॉमन रूट, व्हेन आई हैव अ कॉमन रूट. Okay, so I'll put this equation then. Okay, and what to do and which formula to use when I have two common roots for two equations. For example, let's say a1 x square plus b1 x plus c equals to 0, first equation. Second equation is a2x square plus b2x प्लस सी इक्वल्स टू 0. अब मैं इसका बोल रहा हूँ, इसका ही दो रूट से अल्फ़ा एंड बीटा, इसके भी दो रूट से अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है. तो सम ऑफ रूट्स मेरा इसका आंसर क्या होगा, b1 अपॉन a1. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा मेरा, c अपॉन a1, c1 अपॉन a1. इसमें भी मेरे पास अल्फ़ा सम कितना होगा, b2 अपॉन a2, और मेरे पास प्रोडक्ट कितना होगा, c2 अपॉन a2, राइट. पर मैंने कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है. जो अगर ये 5 और 6 निकला इसका रूट, तो इसका भी रूट सेम निकला, तो जब इनको 5 प्लस 6 ऐड करूँगा तो ये भी सेम आएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट b1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू b2 अपॉन a2. ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, c1 अपॉन a1 इक्वल्स टू c2 अपॉन a2. और आपको पता है जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो कैसे दिखेगा, ये a2 ओवर a1 और b को नीचे b2 ओवर b1 इक्वल्स टू a2 ओवर, ये अलग है और ये अलग है, a2 ओवर a1 इक्वल्स टू c2 ओवर c1. Okay, so that's how these things are done and that's how it's gonna happen. So आप इसको सेम पेज में देख सकते हैं, पेज नंबर 372. यू विल अंडरस्टैंड कि जब वन कॉमन रूट है तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और जब दो कॉमन रूट्स है, मतलब इसमें भी इस इक्वेशन का भी सेम रूट से, इस इक्वेशन के भी सेम रूट से, तब हम कौन सा फॉर्मूला, हम ये वाले सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई से भी फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं. हम ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इन्हीं में से आ जाएगा.
जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b2 अपॉन b1 है तो a2 अपॉन, okay, you can understand from this also. Okay, okay, so we have an example right now, and this is example number 24. This is exactly related to this question thing that we just did right now. So I'll read it out for you guys. It says find the value of k so that the equation this and this may have a common root. I don't know whether they have a common root or not, but they should have a common root because they have written that. Okay, so I'll write both the equations down over here. X square minus kx minus 21 equals to 0. Okay, and the second equation is x square minus 3kx plus 35 equals to 0. Now they said they both have a common root, so I'm assuming that alpha is a common root. अगर 1 होता है common root, अगर मैं 1 डालता हूँ यहाँ पे तो 0 आना चाहिए, पर उन्होंने बोल दिया कि ये common root है, तो मैं x की जगह क्या डाल रहा हूँ, अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 3k अल्फा प्लस 35 equals to 0. So when I subtract both the equations, so साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस बन जाएगा, या माइनस बन जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2k अल्फा, okay, and then this is minus 35 and minus 21, which is going to become what? It's going to become 28, okay, 56 minus 56 equals to 0. So देन अल्फ़ा की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, तो अल्फ़ा 2k अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 56 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 56 ओवर 2k एंड दिस कैन बी कैंसल्ड आउट, दैट इज़ 28k. सो मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई. अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा. ठीक है, लेट्स से मैं पहली वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ. ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा माइनस 21, तो अल्फ़ा की वैल्यू 28 अपॉन के माइनस के इंटू 28 ओवर के माइनस 21 इक्वल्स टू 0. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब मैं 28 का स्क्वायर करने से पहले मैं क्या करूँगा, एंड नाउ what we'll be doing is we'll be cancelling this k and k, so they both will cancel out, and 28k whole square माइनस 49, क्योंकि ये 28 माइनस 28 और माइनस 21 माइनस 49 बन गया इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब मैं इधर कर रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो आप इधर देख सकते हैं, तो 49 उधर जाएगा तो प्लस 49 हो जाएगा. सो 28k, ओके, 28k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49, और 49 उधर गया तो आपके पास क्या बचा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 7 बचेगा. ठीक है, तो 28k इक्वल्स टू 7, और फिर 7 नीचे आ जाएगा, 28 ओवर 7 इक्वल्स टू k 4, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 4. ओके, सो आपके पास k की वैल्यू ढूंढनी थी आपको, क्योंकि हमें कॉमन रूट गिवन था. और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, एक कॉमन रूट गिवन था और मैंने कॉमन रूट ले लिया अल्फ़ा. जब दोनों में कॉमन रूट अल्फ़ा गिवन है रूट, तो हम क्या करेंगे, हमने दोनों को सॉल्व किया और अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, और अल्फ़ा की वैल्यू जब निकाली हमने, तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर दी. ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली कि हम अभी यही इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम वो इस्तेमाल करेंगे जो इक्वेशन हमने सीखी थी आगे क्वेश्चंस में. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन दैट इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस. ओके, लेट्स हैव अ लुक इन एग्जांपल नंबर 25. एग्जांपल नंबर 25 says something like this: if a equation x square minus ax plus b equals to 0 and the second equation is x square minus cx plus d equals to 0 have one root in common. How many roots in common? Only one root in common, just keep that in mind. And the second equation has equal roots, then prove that. So I got one thing out of that, this question, that is second equation has equal roots. सेकेंड इक्वेशन में इक्वल रूट्स कब होते हैं, सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस
सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, व्हाट इज बी? यहाँ पे सी है, माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज डी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पे कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4d। ओके, तो मेरे पास आ गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4d या सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू d। आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। तो मेरे पे d की वैल्यू आ गई। अब जो ये d की वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे डिस्क्रिमिनेंट से d की वैल्यू आई। अब मैं इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये सेकंड इक्वेशन थी मेरी। तो d की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर डी इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर ओवर 4, सॉरी दिस इज 4। अगर आप ध्यान से देखें, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? एक्स माइनस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर का। अगर आपको फिर भी श्योर नहीं है, आप इसका फॉर्मूला पुट करके देखो तो आपके पास सिमिलर आंसर आएगा ऐसे करके, इक्वल्स टू 0। अब जब स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा, 0 स्क्वायर रूट बन जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा। तो x इक्वल्स टू सी ओवर 2 बचेगा आपके पास। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई x की वैल्यू? c अपॉन 2। कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ओके, c अपॉन 2 x की वैल्यू है, d की वैल्यू है सी स्क्वायर अपॉन 4। अब जब मुझे x की वैल्यू मिल गई तो मैं इक्वेशन 1 में डाल दूंगा। इक्वेशन 1 क्या कहती है? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। मैं x की वैल्यू इसमें डाल रहा हूँ, दैट इज c अपॉन 2। तो c अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू सी अपॉन 2 प्लस b equals to 0. Right, now if I just solve it, c square upon 4 minus ac over 2 plus b equals to 0. एलसीएम निकाल दूंगा मैं सबका। एलसीएम निकालूंगा तो 4 आएगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4। तो सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4b और 4 उधर चला जाएगा जो कि 0 बन जाएगा। अब मुझे ये देखना है मुझे प्रूफ क्या करना था। मुझे प्रूफ जो AC वाला पार्ट है इधर ही रहने दूंगा या उस तरफ भी ले जा सकता हूँ, तो मैं उस तरफ ले जा लेता हूँ। तो सी स्क्वायर माइनस 4b इक्वल्स टू 2ac, ये माइनस 2ac उधर लेके चला गया मैं। ठीक है, ध्यान देना। अब सी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूंगा। तो ओके, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी? सी स्क्वायर है तो 4 उधर चल जाएगा तो 4d। तो सी स्क्वायर की जगह मैं 4d भी लिख सकता हूँ, माइनस 4b इक्वल्स टू 2ac। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है बाहर निकाल लो 4, तो d माइनस बी और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर क्या बचा? ac। तो आपके पास क्या आया? 2 बचा, 2 और d माइनस बी equals to ac, and this is what you had to prove. If you look up over there, this is what you have to prove. So even the equations, when they have given us two equations, just go patiently and slowly you'll understand. So I didn't catch anything from the equation. I caught that the last line, that the second equation has equal roots. So I caught that इक्वल रूट से, जब इक्वल रूट्स होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो मैंने इससे d की वैल्यू फाइंड कर ली और d की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में ही डाल दी, क्योंकि d के सेकंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था। तो d की वैल्यू मैंने डाल दी उसी में। अब जब मैंने d की वैल्यू डाल दी तो मुझे c की वैल्यू आ गई। ओके, मुझे c की वैल्यू आ गई, सॉरी x की। जब x की वैल्यू आ गई उसको इक्वेशन 1 में डाल दीजिएगा। ओके, दैट्स हाउ यू आर सपोज टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।